नमस्कार, मैं हूं रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। ट्विटर के संस्थापक और पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी ने भारत सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। जैक डॉर्सी ने एक साक्षात्कार में दावा किया कि भारत सरकार में हो रहे किसान आंदोलन के दौरान सरकार ने उन्हें ट्विटर को बंद कर देने की धमकी दी थी और इस बात का दावा जैक डॉर्सी ने सोमवार को यूट्यूब चैनल ब्रेकिंग पॉइंट में किया था। तो वहीं जैक डॉर्सी की इस बात पर सहमति जताते हुए किसान नेता राकेश टिकैत की एक वीडियो सामने आई। देखिए ये वीडियो। उस टाइम पे भी भारत सरकार ने ये हमको जानकारी थी कि जितने रिच फेसबुक और ट्विटर पे आने चाहिए किसान मूवमेंट के, वो नहीं आ रहे और ये लोकल स्तर पे रोकने की कोशिश करते थे। और जो इसको मालिक था उसने बिल्कुल अब स्पष्ट कहा ही है। लेकिन जो भी ऐप हैं, जो कंपनियां ये चलाते हैं इस तरह की, वे किसी के प्रेशर में नहीं आते। उसने बिल्कुल ठीक कहा, भारत सरकार ने ये एफर्ट्स किए होंगे और ये कई बार खबरें चली भी हैं कि उनको नुकसान कर देंगे अगर वे बात नहीं मान देंगे। तो ये सारी चीजें हैं, तो उन्हें जो चीज है उन्हें बिल्कुल ठीक कही है। इसके बाद भारत सरकार ने जैक डॉर्सी के इन आरोपों को खारिज किया और केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने जैक डॉर्सी के इन आरोपों पर असहमति जताते हुए ट्वीट भी किया और साथ ही साथ एक बयान में कहा कि भारत ने ना ही ट्विटर के दफ्तर पर छापा मारा और ना ही किसी को जेल भेजा गया था। No, look, I have already tweeted early morning on this statement by Jack Dorsey. Jack Dorsey was the CEO of Twitter during a very, very dubious period in Twitter's history. What he has said is an outright lie, and I have said that publicly, and I'm reiterating it again. Twitter is a company that believed that it was not necessary for it to comply with Indian law. It believed that it did not have to comply with Indian law and made up its rules as it went along. And the government of India has been very clear from the very beginning, for all companies that operate in India, they have to always comply with Indian law. That is point number one. Point number two, I just want to refresh Jack Dorsey's memory and certainly all your viewers that between 2020 and 2022, Twitter was violating Indian law multiple times, and it was in non-compliance several times during those two years, and it started complying only in June 2022. During that entire period, nobody went to jail, nobody was raided, and so Jack Dorsey, knowing fully well that Twitter did not comply with Indian law and did not face any consequence of that, is today lying and making up this story about raids and arrests. Third point, that Twitter now, it is there now in public domain that Twitter during this period was not only partisan, was behaving in an absolutely arbitrary manner, and the Twitter files that have then come out after Jack Dorsey sold Twitter has exposed Twitter to be a platform that abused its power, misused its power, and de-amplified many people, as in muted their voices, de-platformed many people, as in permanently took them off Twitter, totally in violation of Article 14 and Article 19 of our Constitution. And they did this in India, they did this in the US, and this information is now available in the public domain for everybody to read and see. And therefore, we have always maintained, the government of India has always maintained that our objectives are to ensure that the internet is safe and trusted, that every intermediary like Twitter, foreign or Indian, big or small, must be always compliant with Indian law. And our laws have very clear provisions about weaponizing of misinformation, which is what Twitter did during the entire period of 2020, where they weaponized misinformation against the Indians and the government of India, and therefore they were exposed. So therefore, today for Jack Dorsey to suddenly wake up from his slumber and to try and rebrush the history of Twitter's conduct, and so far without any consequences, is to essentially say what I said in my tweet, that it is a total outright lie. लेकिन अब बात यह है कि जैक डॉर्सी के इन आरोपों के बाद भारत में लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सरकार के इस रवैये पर काफी सवाल उठा रहे हैं।
क्योंकि बात यहां आ रही है कि पत्रकार पर क्यों हमला किया जा रहा है, आखिर क्यों कर रहे हैं नेता इस तरह का व्यवहार। कभी कोई नेता पत्रकार के सवाल पूछने पर भागने लगता है, तो कभी कोई नेता पत्रकार के सवाल पूछने पर पत्रकार को ही धमकाने लगता है। क्षेत्र का अपमान मत करो, तुम भास्कर से हुए तो क्या? नहीं मैं भास्कर से कोई मतलब नहीं, अपमान करने वाली। दैनिक भास्कर से आप हो, सबसे मुखर सांसद और एक मुखर नेता हैं जी। लेकिन दैनिक भास्कर से हो तो चलो, विधानसभा मेरी विधानसभा जी, है, जी, लोकसभा जी, क्षेत्र की, जी। आप अपमान मत करो। किसी ने सरकार के इस रवैये पर सवाल उठाते हुए ट्वीट कर लिखा कि सारी सरकार मालिकों को धमकाने में लगी है क्या? मंत्री जी मालिक के नाम पर एक पत्रकार को धमकी देती हैं। मंत्री जी जिस मोदी सरकार में काम करती हैं, वो ट्विटर के मालिक को धमकी देती हैं कि पत्रकारों के अकाउंट को बंद करें। इनका झगड़ा मुगलों से नहीं है, उन मालिकों से है जिनके पत्रकार से या प्लेटफॉर्म पर इनकी पोल खुलती है। एक दिन जनता से भी ये कह देंगे कि आप हमारे मालिक नहीं हैं, हम सारे मुमालिक में आपकी नाक कटवा चुके हैं। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे इसी खबर पर। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो आइए आपको दिखाते हैं कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत की एक वीडियो, जिसमें वो ट्विटर के फाउंडर और पूर्व CEO जैक डॉर्सी के खुलासे पर क्या कहती हैं। और जैसा कि आपने अभी सुना और देखा, ये जैक डॉर्सी हैं, ट्विटर के संस्थापक, द फाउंडर ऑफ ट्विटर एंड ऑल्सो इट्स फॉर्मर CEO. ही वॉज द CEO ऑफ ट्विटर व्हेन द फार्मर एजिटेशन वॉज हैपनिंग। और उन्होंने दो टूक कहा कि सरकार ने उनसे कहा अगर किसान तो ट्विटर के दफ्तरों, कर्मचारी के घर पे छाप, भारत में ट्विटर बंद कर दिया जाएगा। लेकिन सच की भी एक खासियत होती है, और सच की खासियत यह है कि जितनी से उसको दबाया जाता है, और फिर मोदी काले सच आप डेमोक्रेसी ऑफ डेमोक्रेसी लगा जा रहा, उसी को उसी सच को बताने का है। सोचिए कि जब 3 काले कृषि कानून आए थे, किसान विरोधी कानून, और उन किसानों का दंड किया जा रहा, जब 1 साल से ऊपर दिल्ली की सड़क पर गर्मी बरसात झेलते हुए इस सरकार के आंदोलन कर रहे थे, तो बजाय समाधान ढूंढने के उनको मवाली, उनको खालिस्तानी, उनको पाकिस्तानी, उनको आतंकी तो कहा ही जा रहा था, साथ में ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स को यह भी रहा था अगर उनको दिखाया तो आपका भारत में बोरिया बिस्तर हम बंद कर देंगे और आप पर छापे मारे जाएंगे। और याद रखिएगा, अपने घमंड और अहंकार में चूर्ण इस देश का डरपोक तानाशाह प्रधानमंत्री तब तक चुप रहा जब तक 700 से ज्यादा किसानों की शहादत नहीं हो गई, और चुनावी नफा नुकसान देखते हुए 3 काले कृषि कानून वापस लिए। लेकिन यह सच है कि जब इस देश का अन्नदाता अपने हक की लड़ाई लड़ रहा था, तो इस देश के प्रधानमंत्री उनका दमन कर रहे थे, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे थे। और आपको याद दिला दूं, यह मई 2021 की बात है। किसान आंदोलन चल रहा था, अपनी चरम सीमा पर था, और तब बीजेपी की फेक न्यूज फैक्ट्री, जो कि सही नाम है बीजेपी की IT सेल का, उनके कुछ बददिमाग प्रवक्ताओं और सांसदों ने एक मनगढ़ंत फर्जी ट्वीट किया था, कोई तथाकथित टूल किट को लेकर।
उनका कहना था कि कांग्रेस इस टूल किट का इस्तेमाल कर रही है। और आपको याद होना चाहिए कि उसको मैनिपुलेटेड मीडिया मतलब भ्रामक मीडिया कहकर टैग किया गया था। और आज वो असलियत सामने आ रही है कि उसके बाद क्या हुआ था। उसको भ्रामक मीडिया कहकर टैग किया गया था और 24 मई 2021 को ट्विटर के ऑफिसेस पर छापा पड़ा, ट्विटर के एम्प्लॉइज के घर पर छापा पड़ा और ये अब समझ में आता है कि किसान आंदोलन को दबाने के लिए किया गया था। आपको बता दें कि सुप्रिया श्रीनेत ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश के प्रधानमंत्री को कायर और डरपोक भी बताया। जरा देखिए ये वीडियो। कि इस देश का प्रधानमंत्री इतना कायर, इतना डरपोक क्यों है? इस देश की सरकार 140 करोड़ लोगों के इस देश की सरकार 21 साल की एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट से डरती है, पॉप सिंगर रिहाना से डरती है, वो छोटी सी बच्ची ग्रेटा थनबर्ग से डरती है। इस देश की सरकार मीडिया से, खासतौर से उस मीडिया से जो सवाल पूछता है, इतना डरती है कि एक लंबी फहरिस्त है मेरे सामने जिसमें मैं लगातार बता सकती हूं कि किन किन लोगों पर सीबीआई की, ईडी की, इनकम टैक्स की रेड हुई क्योंकि वो सच दिखा रहे थे। अब चाहे वो भास्कर हो जो कोरोना काल का सच दिखा रहा था, चाहे वो न्यूज क्लिक हो, चाहे वो न्यूज लॉन्ड्री हो, चाहे वो भारत समाचार हो, चाहे वो वायर हो, चाहे वो क्विंट हो, चाहे वो प्रणॉय रॉय हो, चाहे वो तमाम ऐसे लोग जिन्होंने सच दिखाने की और सवाल पूछने की हिम्मत दिखाई, उनको रेड किया गया और ये चुप कराने की साजिशें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।